Today we are going to start the questions of chemical energetics. ठीक है जी. As we have done the chapter, तो कुछ P1 के questions कर लेते हैं, कुछ P2 के questions कर लेते हैं, ठीक है. So that we get familiar with the format कि इस chapter से किस तरह के topic के questions आते हैं, ठीक है. Alright जी, question number 1. The diagram shows the energy profile of a chemical reaction. Two energy changes are labeled X and Y. Which statement about the reaction is correct? Alright, can you please tell me what do you mean by X? X किसको लेबल किया हुआ है उसने? Activation energy. As we know that activation energy is labeled from reactants to peak of hum. So this X is basically what? This X is equals to activation energy. And what is this Y? Enthalpy change. Because delta H is from reactants to products. Now let's see what are the options. Which statement about the reaction is correct? The activation of energy of the reaction is X plus Y. No. The enthalpy change of the reaction is X. No. C. The enthalpy change of the reaction is X plus Y. No. D. The reaction is exothermic. Is this right? Yes. Exo में reactants are at higher energy level and products are at lower energy level. The energy diagram represents a chemical reaction carried out with a catalyst, both with a catalyst and without a catalyst. ठीक है जी. विद कैटलिस्ट कैसा होता है बेटा? द हम शॉर्टन्स. और विदाउट कैटलिस्ट क्या होता है? उसकी हम बड़ी होती है, ठीक है. व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द कैटलाइज्ड रिएक्शन? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेदर वी टॉक अबाउट द एंथैल्पी चेंज फॉर द कैटलाइज्ड और अनकैटलाइज्ड, द एंथैल्पी चेंज रिमेन्स सेम. डेल्टा एच की वैल्यू कैटलाइज्ड हो या अनकैटलाइज्ड हो, इट डज नॉट चेंज. तो आप रिएक्टेंट्स क्या करते हैं? डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज डेल्टा एच? HP minus HR. So what is the enthalpy of products? Check करें बेटा इसको. 50. And what is the enthalpy of reactants? 100. So 50 minus 100 gives me minus 50. So finally the answer would be B. ठीक है जी. Minus 50 तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? B. So make sure one thing कि catalyzed reaction हो या uncatalyzed, enthalpy change remains same. Only the activation energy changes. ठीक है. Alright, next is which changes endothermic. Endothermic means energy is absorbed. तो ऐसा कौन सा चेंज है जिसमें क्या हो रहा है बेटा? एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड. CH4 plus 2O2 it makes CO2 plus water. ये किस चीज की इक्वेशन है? रिकॉल करो थोड़ा सा. What is CH4? वेरी गुड, कंबशन है. दिस इज मीथेन. मीथेन में ऑक्सीजन, मीथेन बर्न हो रहा है और इवेंचुअली क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कंबशन की टिपिकली क्या प्रोडक्ट्स होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो दिस इज अ काइंड ऑफ कंबशन. टेल मी, इज इट एंडो और एक्सो? एक्सो. तो ए तो है बेटा एक्सो. H plus Cl, hydrogen atom plus Cl atom, they both are making HCl. So what is happening over here? Bond making. Two atoms are joining and they are making a molecule. So what is happening here? Bond making. Bond making कैसा होता है नेचर में? एक्सो. वाटर इज ब्रोकन डाउन. आप ये देखें, H2O is broken down into hydrogen and oxygen. So when a molecule is broken down into atoms, what kind of change is this? A molecule is broken down into atoms. So yes, it is bond breaking. And what is bond breaking in nature? Endothermic. ठीक है जी. So ये हो गया आपका endothermic. And what about the last one? Hydrogen, water. Water is in liquid and now it is in solid. So liquid जब solid में convert होता है तो क्या होता है? Particles lose energy. Liquid solid में change होता है freezing के process में, तो particles lose energy and their movement slows down. So this is also a kind of exothermic. ठीक है. Alright, next is related to organic chemistry. अगर आप सब लोगों को थोड़ा सा alkanes याद है तो आपको होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज याद है? When chain length increases, then what happens? The melting boiling point increases. ठीक है. The enthalpy changes when methane, butane and octane are burned completely in oxygen are. ये देखिए बेटा, ये enthalpy changes दिए हैं मीथेन के, ब्यूटेन के, ऑक्टेन के. अब आप मुझे बताओ, मीथेन और ब्यूटेन के दरमियान में कोई है? Yes. What do we have? Ethane, then propane, and उसके बाद ब्यूटेन के बाद क्या आता है बेटा? What we have after butane? Pentane, hexane, heptane
एंड देन वी हैव ऑक्टेन, ठीक है जी। मीथेन के बाद ये दोनों आते हैं और ब्यूटेन के बाद ये 3 आते हैं। अब डेफिनेट सी बात है, इंथैल्पी चेंज में भी क्या होगा, आप नोटिस करो इंथैल्पी चेंज में कैसा ट्रेंड फील हो रहा है आपको, इज इट इंक्रीजिंग? यस, द ट्रेंड इज इंक्रीजिंग, ट्रेंड इंक्रीजिंग है, बट नाउ यू हैव टू प्रिडिक्ट कि क्या इंथैल्पीज होंगी, व्हाट आर द इंथैल्पी चेंजेस व्हेन प्रोपेन एंड पेंटेन आर बर्न्ड। आप मुझे बताएं कि प्रोपेन किसके क्लोजर है, मीथेन या ब्यूटेन के? ब्यूटेन के। इट इज जस्ट अबव ब्यूटेन, तो अगर ब्यूटेन का एंथैल्पी चेंज है -2877, तो उसका क्या होना चाहिए, दैट शुड बी अराउंड 2000 समथिंग, ठीक है। तो जरा शॉर्ट लिस्ट करें क्या ऑप्शंस है, ए एंड बी, ठीक है। आगे देखते हैं, लेट्स सी। उसके बाद दे आर टॉकिंग अबाउट पेंटेन। अब बताओ पेंटेन कहाँ है बेटा, अगेन ब्यूटेन के राइट आफ्टर क्या आता है, पेंटेन। सो पेंटेन का भी बहुत ही क्लोज होना चाहिए 2877 के, यानी कोई 3000 के करीब। अब आप चूज करें ए और बी में से व्हाट शुड बी द राइट आंसर, बी, ठीक है। सो व्हाट आई हैव डन इज प्रिडिक्शन एंड एस्टिमेशन, क्योंकि मुझे ब्यूटेन से जस्ट अबव और ब्यूटेन से जस्ट बिलो चाहिए था, तो ब्यूटेन से जस्ट अबव मैंने -2220 कर दिया, और पेंटेन जो है ब्यूटेन से जस्ट बिलो जो ब्यूटेन के बाद आता है उसके लिए मैंने क्या चूज कर लिया, -3530। अगर मैं -4210 चूज करती तो वो बहुत ज्यादा वैल्यू थी, ठीक है। द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर अ रिएक्शन इज शोन, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज H3 - H1, इज दिस ट्रू? पहले बताओ ये कौन सी एंथैल्पी डायग्राम, ठीक है जी। रिएक्टेंट्स आर एट द बॉटम एंड प्रोडक्ट्स आर एट द टॉप। वॉर से देखो क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी, जरा लेबल कीजिएगा मेरे साथ, फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू पीक ऑफ हार्म। तो बताएं पीक ऑफ हार्म क्या है इसमें, H3, और रिएक्टेंट्स का लेवल क्या है, तो इजंट दिस स्टेटमेंट ट्रू? यस, H3 - H1 इज द एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट से पीक ऑफ हार्म पे जा रहे हैं, रिएक्टेंट्स का स्टार्टिंग लेवल H1 है और पीक ऑफ हार्म तक H3 है, तो वो टोटल एनर्जी कैसे आएगी, H3 - H1 करके। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज H3 - H2, नो इट वुड बी रॉन्ग। डेल्टा H क्या होगी बेटा बताइएगा, H2 - H1, दिस वन इज रॉन्ग बिकॉज डेल्टा H वुड बी H2 - H1, ठीक है जी। प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी में से रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और एक्टिवेशन के लिए क्या करेंगे, हम पे जो भी एनर्जी है उसको किस पे से माइनस कर देंगे, रिएक्टेंट्स की एनर्जी से, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? गुड, आगे चलते हैं। विच फिजिकल चेंजेस आर बोथ एक्सोथर्मिक, अभी बात कर लेते हैं। कॉन्डेंसेशन, व्हाट हैपेंस इन कॉन्डेंसेशन, द पार्टिकल्स लूज एनर्जी, तो ये क्या होगा कॉन्डेंसेशन, फिर एक्सो होगा, एंडो तो नहीं होगा बेटा, ठीक है। इवेपोरेशन में क्या होता है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो कैसा रिएक्शन हुआ ये, एंडो, इवेपोरेशन एंडो। एंड व्हाट अबाउट मेल्टिंग, यस, पार्टिकल्स गेन एनर्जी। किसी भी चीज को मेल्ट करना हो तो एनर्जी देते हैं या खुद ही रिलीज होती है, प्रोवाइड करते हैं। फ्रीजिंग कैसा प्रोसेस है, एंड व्हाट अबाउट कंडेंसेशन, एक्सो, मेल्टिंग एंडो, फ्रीजिंग इज एक्सो। चले अब बताएं व्हाट शुड बी द राइट आंसर। देखिए बेटा, व्हेन यू मेल्ट, व्हेन यू बॉयल, व्हेन यू इवेपोरेट, यू हैव टू प्रोवाइड हीट, सो दीज आर एंडोथर्मिक बाय नेचर। और इसका रिवर्स क्या होता है, एक्सो। व्हेन अ गैस कूल्स डाउन एंड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, क्या प्रोसेस होगा, एंडो। जब एक लिक्विड कूल डाउन होकर फर्दर सॉलिड बनाता है वो भी क्या होगा बेटा, एंडो, ठीक है जी। द डायग्राम शोज एन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर अ केमिकल रिएक्शन बोथ विद एंड विदाउट अ कैटलिस्ट। विच एनर्जी चेंजेस द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ कैटलाइज्ड रिएक्शन। पहले तो बताएं कि कैटलाइज्ड में हम क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। अब आपने कहाँ से कहाँ लेबल करना होता है एक्टिवेशन एनर्जी को, फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू पीक ऑफ हम, तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर, डी। आप देखिए ये आपका रिएक्टेंट्स का लेवल है और ये आपकी शॉर्टर वाली हम्प है, ठीक है। एन एंडोथर्मिक रिएक्शन हैज एन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्स, व्हिच एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इज करेक्ट। सबसे पहले वी हैव टू लुक व्हाट इज एन एंडो। एंडो में क्या होता है, रिएक्टेंट्स नीचे होते हैं और प्रोडक्ट्स ऊपर। सो ढूंढो कहाँ रिएक्टेंट्स नीचे और प्रोडक्ट्स ऊपर है, ए में, और इसके अलावा कहाँ पे है, डी में, ठीक है। उसके बाद कहाँ सही से लेबल किया हुआ है इसने एक्टिवेशन एनर्जी को, ए और आपने क्या कहा था मुझे, डी, ठीक है।
सी और बी क्या है बेटा? एक्सो, ये दोनों एक्सो हैं। अब ध्यान से देखना, आपने एक्टिवेशन एनर्जी को लेबल करना है। कहाँ से लेबल होती है? फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू पीक ऑफ हम। सो कहाँ उसने एक्स को सही लेबल किया हुआ है? ए, ये सही लेबल किया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या गलती है? ये इनकरेक्ट है। क्यों? रिएक्टेंट से लेबल करना था। ठीक है, उसने गलत लेबल किया हुआ है। रिएक्टेंट से पीक ऑफ हम तक होता है एक्टिवेशन एनर्जी। द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में अकर इन 3 स्टेजेस। ऑलराइट, आपने बताना है कि व्हिच स्टेजेस वुड बी एक्सोथर्मिक। चलिए लेट्स कंसीडर ईच एंड एवरी स्टेज और देखते हैं हो क्या रहा है। स्टेज नंबर 1 में क्या है? H2O2 आर द मॉलिक्यूल्स, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू व्हाट? मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू एटम्स। सो अगर मॉलिक्यूल एटम्स में ब्रेक डाउन करेगा तो व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इज दिस? बॉन्ड ब्रेकिंग, एंडोथर्मिक। H plus O क्या हो रहा है? एटम्स, एंड एटम्स आर मेकिंग अ मॉलिक्यूल। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? बॉन्ड मेकिंग। सो बॉन्ड मेकिंग नेचर में क्या है बेटा? एक्सो। सो दिस वन इज राइट। ये एंडो क्यों था बेटा फर्स्ट वाला? बिकॉज यहां क्या हो रहा था? बॉन्ड ब्रेकिंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वाटर, व्हाट इज द स्टेट? गैस। अ गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, कंडेंस हो रही है। We were talking about stage number 3. 2 water molecules. The state is gas and they are being converted into liquid. Gas क्या होती है बेटा? It is cooled down, condense करती है और किस में change होती है? Liquid में. So what happens to the particles? They lose energy. So this would be exothermic. ठीक है. So what should be the right option? C. 2 and 3. Under certain conditions, nitrogen reacts with oxygen to form N2O. The energy profile diagram for this reaction is shown. What is the activation energy for the reverse reaction? ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है बेटा। रिवर्स का क्या मतलब है? रिवर्सिबल रिएक्शंस, यू रिमेंबर? अच्छा, होता क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन में द प्रोडक्ट्स बिकम द रिएक्टेंट्स एंड द रिएक्टेंट बिकम्स द प्रोडक्ट। अब जरा गौर से देखिएगा हाउ आई एम गोइंग टू मेक इट। आपसे मैंने क्या बोला? आपने इन्हीं बाउंड्रीज के अंदर रहना है। ठीक है, अगर ये एंडो है बेटा तो इसका रिवर्स क्या होगा नेचर में? एक्सो। ठीक है, और बाउंड्रीज यही होंगी। ये आपका रिएक्टेंट है और ये N2 plus O2 किसका लेवल है? आपका प्रोडक्ट का लेवल आ गया। अब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये होगी। ठीक है जी, फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू पीक ऑफ हम। नोटिस करें ये टोटल एनर्जी, डिड यू नोटिस दिस? टोटल इज 447 एंड दिस इज 164। अकॉर्डिंग टू दिस अगर आपको EA फाइंड करना है तो क्या करेंगे? टोटल कितना नजर आ रहा है? 447, उसमें से किसको माइनस कर देंगे? 164। 447 माइनस 164। सो व्हाट वुड बी द आंसर? 283। और एक्टिवेशन एनर्जी का साइन क्या होता है बेटा? इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो द राइट आंसर इज 283। बट नेगेटिव वाला नहीं आप यूज करेंगे बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, रिलीज नहीं होती कभी भी। सो डिड यू नोटिस व्हाट आई हैव डन? उन्हीं बाउंड्रीज में रह के सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के लेवल्स को क्या किया मैंने? इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि व्हाट वुड बी द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन। Compound Y reacts with oxygen. This reaction has a positive enthalpy change of reaction. What do you mean by positive enthalpy change? क्या होता है बेटा positive enthalpy change? Endothermic. So whenever a reaction is endothermic, the enthalpy change is positive. What information can be deduced about Y and its reaction with oxygen? जी, Y और इसका reaction oxygen के साथ, उस बारे में हमने बताना है कि what information can be deduced. Compound Y can be used as a fuel. No. Fuels release energy. ठीक है, तो ये compound Y is not a fuel. Compound Y could be a hydrocarbon. No. सारे हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो कंबशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं। ठीक है, इन द रिएक्शन द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड्स इज ग्रेटर देन द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। बताएं जी, व्हाट अबाउट दिस स्टेटमेंट? यस, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स इज ऑलवेज ग्रेटर। डी देखते हैं, इन द रिएक्शन द प्रोडक्ट्स आर एट अ लोअर एनर्जी लेवल देन द रिएक्टेंट्स। नो, एंडो में बेटा क्या होता है? द प्रोडक्ट्स आर एट हायर एनर्जी लेवल।
ठीक है, सो सी वुड बी द राइट स्टेटमेंट. The diagram shows the energy profile for a reaction. Did you notice there are two routes, route 1 and route 2. बताएं कौन सा catalyzed और कौन सा uncatalyzed है. route 2 is catalyzed and route 1 is uncatalyzed. ठीक है. Which statement about this reaction is correct? पहले बताओ exo है क्या endo है, जल्दी. It is exothermic. ठीक है जी. चलें. Let's study the statements. More energy is needed to break the bonds than is released. No. More energy is released. ठीक है, क्योंकि overall exo है. route 1 and route 2 give the same overall equation for the reaction. Yes, whether you use the catalyst or you don't use any catalyst, the equation remains the same because the reactant and products are same. route 2 involves the use of catalyst. Yes, the reaction is exothermic. Yes, so C would be the right answer. 2, 3 and 4 are the right statements. Our reaction is exothermic. Identify करो which one is exothermic. What do you think about A and B? A और B के बारे में क्या ख्याल है? एंडो है. राइट कौन सा होगा? इधर C और D. अभी देख लेते हैं कि डेल्टा H क्या होना चाहिए. एक्सो में डेल्टा H क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड. पॉजिटिव नहीं होता. पॉजिटिव किस में होता है? एंडो में. ठीक है, एक्सो में डेल्टा H इज नेगेटिव. Which statements about endothermic reactions are correct? Energy is absorbed from the surroundings. Is it? Yes, this is true. आगे बताएं. Energy is released to the surroundings. Do you think energy is released? No. Number 3. The temperature of the reaction mixture falls. Yes. सारी absorb हो जाएगी energy तो क्या होगा? Fall करेगा temperature. एक्सो में rise करता है और एंडो में fall करता है. The temperature of the reaction mixture rises. No. So 1 and 3 would be the right statements. 16. The equation represents the reaction between two gases X2 and Y2 to form compound XY. The energy profile diagram for the reaction is shown. What reaction is this? Exo or endo? Jaldi. Exothermic. आप बताएं क्या ये E को इसने सही लेवल किया हुआ है? Do you think this is the activation energy? The activation energy for the reaction is equal to E. No. The enthalpy change for the reaction is equals to E. No. The reaction is exothermic. D. The total energy needed to break the bonds is greater. अगर ये overall exo है तो total energy which is needed to break the bonds would be lesser. ठीक है, it won't not be greater. तो ये होना चाहिए था आपका lesser. ठीक है.